Hello students, welcome to Learn Classic Education. Today we are going to read about respiratory system. So coming to the learning objectives, we have to first define the respiratory system and then describe the major function of the respiratory system. Identify the organ of the respiratory tract and explain the structure and the function of the lungs. So describe you all will be able to describe the conduction, that is conducting, and respiratory zone. Then you will be able to explain the mechanism of breathing. Breathing का क्या क्या mechanism है वो आप सब explain कर पाएंगे. Describe the process of pulmonary gas exchange. Pulmonary gas exchange जो है उसका process आप सब describe कर पाएंगे. Explain the transport of oxygen and carbon dioxide. Then describe the role of the respiratory system in maintaining acid-base balance. Then relate the respiratory system to common health condition. So what is the respiratory system? The respiratory system is the body system responsible for bringing oxygen into the body. So respiratory system body system है जो responsible है oxygen को bring करने के लिए तुम्हारा body में and removing the carbon dioxide through the process of respiration. So ये है respiratory system. Major components क्या क्या है? Nose and nasal cavity major components है. Pharynx, larynx, then trachea, bronchi, lungs. ये सब major components है for the respiratory system. Major functions क्या है? Provides oxygen to the body, removes carbon dioxide, enable gas exchange, help regulate blood pH, produce sound and filters, warms, humidified, inspired air. So these are the major function of the respiratory system. एग्जाम्पल क्या है? एयर, फिर एयरवे, लंग्स, एल्वोइली एंड ब्लड. कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. हम लोग एक के बाद एक चलेंगे. आइए. गैस एक्सचेंज. इट टेक्स द ऑक्सीजन इनटू द बॉडी. ऑक्सीजन बॉडी में लेके जाता है एंड रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड. रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच. ब्लड पीएच का रेगुलेशन करने में हेल्प करता है. रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्प्स मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस. Then comes the protection. Protection में क्या आ रहा है? It filters the dust and microorganism. Mucus traps foreign particles. जो mucus है वो foreign particle traps कर देता है. Cilia helps remove the trapped particles. Cilia जो है respiratory system में वो trapped particle को remove करने के लिए help करता है. Voice production. So air passing through the larynx helps produce sound. So air जो larynx से pass करता है sound produce करने में help करता है. ये voice production. Now temperature and humidity control. Temperature humidity control में क्या आ रहा है? Warm and humidified inspired air. Then olfaction में क्या आ रहा है? The nasal cavity contains respiratory involved in the sense of smell. हम लोग को पता है respiratory system sense of smell में help करता है. So these are all the functions of the respiratory system. Coming to the parts of the respiratory system. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आ रहा है हम लोग सबको पता है. ये नोज आ रहा है, नाजल कैविटी आ रहा है, पैरानसल साइनोसिस आ रहा है, फेरिनिक्स आ रहा है. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आ रहा है? लैरिनिक्स आ रहा है, ट्रैकिया आ रहा है, ब्रोंकी आ रहा है, ब्रोंकियोल्स आ रहा है, लंग्स आ रहा है, एल्वोइली आ रहा है. सो ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. की कॉन्सेप्ट क्या है? अपर ट्रैक कंडक्ट्स एंड प्रिपेयर्स एयर, लोअर ट्रैक्स कंडक्ट्स एयर एंड परफॉर्म गैस एक्सचेंज. गैस एक्सचेंज परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी जोन. सो द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 2 जोन. रेस्पिरेटरी ट्रैक 2 जोन में डिवाइड होता है, एक कंडक्टिंग जोन, एक रेस्पिरेटरी जोन. कंडक्टिंग जोन में क्या क्या इंक्लूडेड है? नोज, nasal cavity, pharynx, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स. ये सब याद रखना है. मेजर फंक्शन क्या है? कंडक्ट एयर, फिल्टर पार्टिकल्स, वार्म एयर, ह्यूमिडिफाइज एयर. देन हम लोग आ जाएंगे रेस्पिरेटरी जोन. रेस्पिरेटरी जोन क्या क्या इंक्लूड करता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वोइलर डक्ट्स, एल्वोइलर सैक्स एंड एल्वोइली. ये सब रेस्पिरेटरी जोन कवर करता है. मेन फंक्शन साइट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज. इसका मेन फंक्शन है साइट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज. की कॉन्सेप्ट क्या है?
Conducting zone means air movement. Respiratory zone means gas exchange. Now structure of lungs. Lungs का structure में क्या क्या आ रहा है? The lungs are the major organs of respiration located in the thoracic cavity. So right lungs में क्या आ रहा है? It has 3 lobes. That is superior, middle and inferior. 3 lobes है right lungs में. Other important structures में क्या आ रहा है? Bronchi, bronchioles, alveoli, pulmonary blood vessels and pleura. ये अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में आ रहा है. ब्रॉन्की, ब्रॉन्क्यूल्स, एल्वोइली, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स एंड प्लूरा. लेफ्ट लंग्स में क्या आ रहा है? हैज 2 lobes, सुपीरियर, इंफीरियर, हैज अ कार्डियक नॉच टू एकोमोडेट द हार्ट. प्लूरा में क्या आ रहा है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग्स एंड हेल्प्स रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग. सो प्लूरा हेल्प करता है फ्रिक्शन रिड्यूस करने में during breathing. Now alveoli and gas exchange. Alveoli और gas exchange में क्या आ रहा है? Alveoli are tiny air sacs located at the end of the respiratory tree and they are primary sites of gas exchange. Now features of alveoli. Alveoli का क्या क्या features है? वो लोग very thin walls होता है, large surface area होता है, rich blood supply देता है alveoli और क्लोज एसोसिएशन विद द पल्मोनरी कैपिलरीज. सो एल्वोइली क्लोज एसोसिएशन होता है पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ. नाउ फैक्टर सपोर्टिंग एफिशिएंट गैस एक्सचेंज. क्या क्या फैक्टर्स एफिशिएंट गैस एक्सचेंज सपोर्ट करता है? लार्ज सरफेस एरिया, थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई एंड प्रॉपर वेंटिलेशन. ये सब फैक्टर्स एफिशिएंट गैस एक्सचेंज में सपोर्ट करता है. नाउ गैस एक्सचेंज ऑकर्स बाय डिफ्यूजन. क्या क्या आ रहा है? ऑक्सीजन एल्वोइली टू ब्लड. जो डिफ्यूजन के हेल्प लेके जो गैस एक्सचेंज होता है वो जाता है एल्वोइली से ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ऑपोजिट ब्लड से एल्वोइली. ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो की कॉन्सेप्ट क्या है? एल्वोइली आर द मेजर साइट ऑफ पल्मोनरी गैस एक्सचेंज. ये मेजर साइट है पल्मोनरी गैस एक्सचेंज का. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन. इंस्पिरेशन मतलब डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? जो डिफ्रेंशिएट करता है चेस्ट कैविटी से स्टोमक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को. सो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मूव्स डाउनवर्ड चला जाता है. सो थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस. सो थोरैसिक कैविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा जिसके वजह से प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस. सो इट विल कॉज द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स. नाउ एक्सपीरेशन में क्या क्या आ रहा है? डायफ्राम रिलैक्सेस. सो इन एक्सपीरेशन हम लोग को याद रखना है डायफ्राम रिलैक्सेस हो जाता है. सो इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, एक्सपीरेशन डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है. थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज हो जाता है, एयर मूव्स आउट. सो ये है हम लोग का एक्सपीरेशन का मैकेनिज्म. फिर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट मसल्स. इंपॉर्टेंट मसल्स क्या है? डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, internal intercostal muscles during forced expiration and accessory respiratory muscles during increased respiratory effect. So ये है important muscles. So की concept क्या है? इंस्पिरेशन में क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एयर एंटर कर जाता है. ये एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है की कॉन्सेप्ट, ये याद रखना है. फिर एक्सपिरेशन में जो वो इंस्पिरेशन में हो रहा है उसी का ऑपोजिट होगा. वॉल्यूम डिक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, एयर लीव्स हो जाता है. स्टार्टिंग विद डायफ्राग्राम रिलैक्सिंग. ओके, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एरिया इज इंपॉर्टेंट. Now coming to the pulmonary ventilation. So pulmonary ventilation is the movement of the air into and out of the lung. Pulmonary ventilation क्या है? Air का movement है into and out of the lung. So two phases है. एक इंस्पिरेशन, एयर मूव्स इनटू द लंग्स. हम लोग को पता है, हम लोग अभी पढ़े. इंस्पिरेशन मतलब एयर लंग्स के अंदर आ जाता है. एक्सपिरेशन मतलब एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स. सो हम लोग को ये फॉर्मूला याद करना है. क्या है? मिनट वेंटिलेशन इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद respiratory rate. So ventilation must be coordinated with the blood flow for efficient gas exchange. So important terms क्या है? Tidal volume, amount of air moved during a normal quiet breath. So tidal volume क्या है? ये है amount of the air moved during a normal quiet breath. And respiratory air क्या है? Number of the breaths taken per minute. So number of the breaths taken per minute वो है respiratory rate. And minute ventilation क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स पर मिनट. टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर जो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स मूव करता है पर मिनट, उसे कहते हैं मिनट वेंटिलेशन. सो ये है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन. नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में?
So after gas exchange, oxygen and carbon dioxide are transported through blood. So gas exchange के बाद oxygen and carbon dioxide transport होता है blood के through. So oxygen transport, most oxygen is bound to hemoglobin in red blood cell. So maximum oxygen in our body red blood cell में bound हो जाता है. Then carbon dioxide transport, carbon dioxide is transported. कैसे transport होता है? Mainly as bicarbonate ions. Bicarbonate ions के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, एंड इट इज बाउंड टू प्रोटीन इंक्लूडिंग हेमोग्लोबिन. सो इट इज बाउंड टू प्रोटीन जो इंक्लूडिंग हेमोग्लोबिन है, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा. सो स्मॉल अमाउंट इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा. की कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन मेनली कैरिड बाय हेमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट. सो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के थ्रू कैरिड होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट. नाउ कम्स द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट करते हैं? सो ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड. ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं? इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम कहाँ पर? इन द ब्रेन स्टेम. नाउ मेजर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, क्या क्या मेजर स्ट्रक्चर है पहले वो हम लोग देख लेंगे. मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स एंड केमो रिसेप्टर्स. ये हम लोग को पहले से पता है क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ये पढ़ रहे हैं. मेजर in structures involved. Now medulla oblongata क्या है? It helps regulate the basic respiratory rhythm. Basic respiratory rhythm जो है उसे regulate करने के लिए ये help करता है. Pons क्या करता है? Helps modify and coordinate breathing patterns. Breathing patterns जो है उसे modify करता है और उसको coordinate करने के लिए pons is responsible. Then chemoreceptors क्या है? Detects the changes in carbon dioxide, oxygen and blood pH. जो changes आ रहा है blood pH में, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये सब चेंजेस को डिटेक्ट करता है केमो रिसेप्टर्स. हम लोग पढ़ते हैं ना ये बॉडी अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या नहीं. सो ये सब चेंजेस. देन कम्स द चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग नॉर्मल वेंटिलेशन. हम लोग को ये पता है कार्बन डाइऑक्साइड का चेंजेस आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग नॉर्मल वेंटिलेशन. क्या क्या एग्जाम्पल है? CO2 इंक्रीजेस. CO2 इंक्रीज हो जाता है, द रेस्पिरेटरी ड्राइव इंक्रीजेस. CO2 के इंक्रीज होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो भी इंक्रीज होता है एंड वेंटिलेशन इंक्रीजेस. सो इट इज कॉजिंग द इंक्रीज इन द वेंटिलेशन. दिस हेल्प्स रिमूव्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन ब्लड pH. सो ये हेल्प करता है रिमूव करने के लिए एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन ब्लड pH. नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. सो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इंक्लूड एंड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आर टाइडल वॉल्यूम. पहले जो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है वो है टाइडल वॉल्यूम. Then inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume. Air moved during normal breathing. Normal breathing में जब air moved होता है उसे बोलते हैं tidal volume. Additional air that can be inhaled during normal inspiration. Additional air जो inhale किया जा सकता है normal inspiration में उसे बोलते हैं inspiratory reserve volume. Expiratory reserve volume means additional air that can be exhaled after normal expiration. Additional air जो exhale कर सकते हैं after normal expiration इसे बोलते हैं expiratory reserve volume. Now residual volume. Residual volume क्या है? Air remaining in the lungs after maximal expiration. Maximal expiration में जो air remain किया जाता है उसे हम लोग residual volume बोलते हैं. ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है? हम लोग को पता है nasal hairs, mucus, cilia, cuffing, ये सब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. फर्स्ट बैरियर ऑफ प्रोटेक्शन क्या करता है nasal hair? फिल्टर्स द पार्टिकल्स. छोटे से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं nasal hairs is filtering the particles. mucus trapping the foreign substances. cilia क्या करता है? cilia का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो मूव करता है mucus towards the pharynx. pharynx के तरफ mucus को मूव करता है. कफिंग. कफिंग हेल्प्स रिमूव्स द इरिटेंट. जो इरिटेंट है उसे रिमूव करने में कफिंग हेल्प करता है. स्नीजिंग. स्नीजिंग हेल्प्स क्लियर द नेजल पैसेज. जो नेजल पैसेज है उसे क्लियर करने के लिए स्नीजिंग हेल्प करता है. नाउ दिस मैकेनिज्म हेल्प प्रोटेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो ये सब मैकेनिज्म हेल्प प्रोटेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ना हम लोग समरी एंड क्लिनिकल रेलिवेंस में आ गए. क्या है हम लोग को जो याद रखना है वो है एयर, एयरवे, एल्वोइली, गैस एक्सचेंज एंड ब्लड. सो ये पाथवे हम लोग को याद रखना है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ये सप्लाई ऑक्सीजन करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है. द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कंडक्ट्स एंड prepares inspired air. The lower respiratory tract conducts air and participates in gas exchange. Gas exchange में participate करता है.
देन द लंग कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वोइली, हम लोग को पता है मिलियंस ऑफ एल्वोइली कहाँ पर है, लंग्स में. एल्वोइली आर द प्राइमरी साइट ऑफ pulmonary gas exchange. Alveoli है primary site for pulmonary gas exchange. Diaphragm is the major muscle of inspiration. Major muscles of inspiration क्या है, diaphragm. Then comes the ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन के हेल्प लेके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम लोग पढ़े थे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज बाइकार्बोनेट. सो कोई पूछने से कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखना है बाइकार्बोनेट. देन comes the respiratory systems contributes to acid base balance. अभी पढ़े ना pH, फिर PCO2, ये सब acid base balance respiratory system control करता है. Then brainstem respiratory center regulate the breathing. brainstem जो respiratory center है वो breathing को regulate करने में help करता है. सो क्लिनिकल कनेक्शन में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स नर्सेस अंडरस्टैंड, क्या क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. हम लोग जो अभी तक पढ़े वो नर्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ये देख लेते हैं. एस्थमा डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, निमोनिया डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, सीओपीडी दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बहुत वाइटल है, ये डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा. ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा. पल्मोनरी एडेमा जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा. न्यूमोनोथोरैक्स डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा. फिर रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है या नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा. देन एटेलेक्टेसिस मतलब कोलैप्स ऑफ द एल्वोइली, एटेलेक्टेसिस ये डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा. प्लूरल एफिशिएंट, पानी जम जाना प्लूरल कैविटी में. देन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्पटम ARDS. सो ये सब डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा हम लोग को अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली पढ़े. सो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. थैंक यू स्टूडेंट्स.